Hello students, today we have to start a new chapter for the revision, and that is what? Chapter directing we have to start with. Directing is a function which is being performed after the function of staffing. So the first function of management is your planning, then after planning organizing is being done, then staffing is being done, and the next function to be performed is your directing. Directing is what literally means moving into action. It determines the course, implementation of proposed course of action, giving orders and instructions, providing dynamic leadership, inspiring employees, achieving predetermined objectives. So all these things are being performed, or all these functions are being performed through the function of directing. Now, what is directing? Directing is that part of management process which ensures that the members of an organization work efficiently and effectively for attainment of desired objectives. As a function of management, directing is concerned with instructing, guiding, supervising, and inspiring employees to achieve the predetermined objectives. It involves using orders and instructions to subordinates, overseeing people at work, and creating a work environment wherein the employees may perform to the best of their abilities. It also includes motivating subordinates and providing leadership to them. So डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है? डायरेक्टिंग है आपको गाइड करना, राइट, कि और इंश्योर करना कि मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सुपरवाइजर्स हैं, राइट, लो लेवल मैनेजमेंट हैं, वो आपके वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहे हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, जो गोल है, उसको अच्छे से अटेन किया जा सके. डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जहां पर वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉयज को ताकि प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए. तो क्या हो गया फंक्शन? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना और इंस्पायर करना ताकि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या हो गया, आपका ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सबॉर्डिनेट्स को, उनको ओवरसी कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वर्कर्स को ताकि वो अपना बेस्ट एबिलिटी से काम कर सके, और उनको मोटिवेट करना, राइट, थ्रू लीडरशिप के, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके. नाउ डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? डायरेक्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक एन अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इट इनिशिएट्स एक्शन. तो डायरेक्टिंग इज लाइक स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज एंड सेट्स इट इनटू मोशन. All activities of an organization are initiated through directing. तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इनिशिएट कैसे होती हैं? आपकी डायरेक्टिंग के थ्रू. The purpose of directing is to activate employees to work towards the achievement of predetermined goals of the organization. It converts plans into action. तो प्लान्स को एक्शन में कहां से कन्वर्ट होता है आपका? थ्रू डायरेक्टिंग. अब आपको काम कैसे करना है, कैसे कराना है, कैसे गाइड करना है, दिस इज व्हाट? थ्रू डायरेक्टिंग. तो ये आपके जो एक्शन को स्टार्ट कराता है. इम्प्रूव एफिशिएंसी. डायरेक्टिंग की जो है सिर्फ काम, एक्शंस ही जो नहीं शुरू कराता, काम को ही शुरू नहीं कराता, बल्कि इम्प्रूव एफिशिएंसी भी करता है उसकी वर्क की. It is directing through which managers get the work done through people. Directing serves as a mean of fostering cooperation and commitment among members of the organization. A manager persuades his subordinates to work to the best of their abilities and contribute their maximum efforts towards the achievement of organizational objectives. तो क्या कर रहा है मैनेजमेंट जो है, इसी के थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू ही उसमें कॉपरेशन और कमिटमेंट मेंबर्स में लेके आता है और उन्हें परसुएट करता है सबॉर्डिनेट्स को ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो जो मैक्सिमम अपने एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रोवाइड करें. एंश्योर कोऑर्डिनेशन. डायरेक्टिंग हेल्प करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क मेंबर्स में. Various techniques of directing used are guidance, counseling, and supervision to integrate the efforts of different individuals in the organization. Directing helps to reconcile personal interest of employees with organization goals. So directing से क्या करते हैं, जो personal interest है उसको organization interest के साथ reconcile कर देता है कि ताकि जो है organization goal के through अपने personal interest को achieve कर सके, rather अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देने के. तो
जो आपके टेक्निक्स हैं डायरेक्टिंग की वो क्या है, आपकी गाइडिंग है, काउंसलिंग है, सुपरविजन है, जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अचीव करने के लिए जो है परसुएशंस दी जाती है। Then facilitates changes. Employees often resist changes in the business environment due to fear of adverse effects on their employment and promotion. In order to remove such fear, employees must be informed about the need and benefit of such changes by managers. A manager can persuade his subordinates to accept and carry out changes from time to time in their own interest. तो एक बहुत जो एम्प्लॉयज़ का जो है एक सबसे बड़ा जो डर होता है वो नए टेक्निक्स को या नए चेंजेस को एक ऑर्गेनाइजेशन में रेसिस्ट करते हैं। वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उसका असर उनकी एम्प्लॉयमेंट पे और उनकी प्रमोशन पे पड़ सकता है। तो आपका जो है डायरेक्टिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ के अंदर से इस फियर को निकाला जाता है, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि क्यों ज़रूरत है चेंजेस की, और मैनेजर्स जो है उनको परसुएट करते हैं ताकि वो चेंज जो है उसको एक्सेप्ट करें अपने खुद के बेनिफिट के लिए भी। Help stability and growth. Efficient directing helps an enterprise to survive and grow. It can expand and grow when the right direction is provided. Managers can fully utilize the capabilities of employees through effective leadership, motivation and interpersonal communication. इफेक्टिव डायरेक्शन जो है डायरेक्टिंग है वो क्या हेल्प करता है एंटरप्राइज को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए, और ये एक्सपेंड और ग्रो करता है जबकि उसको राइट डायरेक्शन दी जाती है। सो मैनेजर जो एक राइट डायरेक्शन देते हैं एम्प्लॉयज़ को उनकी पूरी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं राइट अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। नाउ व्हाई इज डायरेक्टिंग कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन? डायरेक्टिंग को मैनेजमेंट इन एक्शन क्यों कहा जाता है? डायरेक्टिंग जो है इनिशिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस को उसके प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स ऑर्गेनाइज्ड action towards the attainment or achievement of predetermined objectives. Planning, organizing and staffing are preparatory functions. Directing initiate organized actions towards the attainment or achievement of predetermined objectives. तो क्या है डायरेक्टिंग जो है आपका जो है वो आपका इनिशिएटिव फंक्शन है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे प्रिपरेटरी फंक्शन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर रहे हैं, उसको मोशन में लाने के लिए, काम को शुरू कराने के लिए से पहले जितने भी एक्शन किए जा रहे हैं वो एक्शंस आपके हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। काम स्टार्ट करना और उनको डायरेक्शंस देना, उनके एक्शंस को सेट करना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम किसका है? डायरेक्टिंग का। जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स बिगेन्स इन डायरेक्टिंग फंक्शन। एग्जीक्यूशन जो हमारे प्लान्स का होता है, प्लान्स को राइट कार्य मतलब पद्धति में शुरू किया जाता है। कार्य उनका जो कार्य संचालन जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स का वो कहाँ होता है? डायरेक्टिंग के थ्रू। तो प्लान्स का एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है आपका? डायरेक्टिंग में। इट इज थ्रू डायरेक्टिंग दैट मैनेजर्स अचीव रिजल्ट्स। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये क्या है आपके जो हमारे फंक्शंस हैं लीड टू एक्शंस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स। तो हमारे डायरेक्टिंग के आपके डिफरेंट फंक्शंस कौन से हो गए? डायरेक्टिंग में क्या क्या हो रहा है आपका? और डायरेक्टिंग में आपका जो होता है आपका सुपरविजन हो रहा है, मोटिवेशन हो रहा है, लीडरशिप है और कम्युनिकेशन। और इन सब के थ्रू क्या होता है आपका प्लान्स, एक्शंस जो बन जाते हैं। सुपरविजन जो आपका फर्स्ट आपका जो हम कहेंगे आपका एलिमेंट है आपका डायरेक्टिंग के। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर सुपरविजन, लीडरशिप, देन मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन क्या है? सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, ऊपर से, ठीक है। विजन मीन्स सीइंग, देखना, और लुकिंग ओवर पीपल और व्यूइंग मेंटल इमेजेस। द सुपरविजन हम डिफाइन क्या कर सकते हैं? ओवरसीइंग पीपल एट वर्क फ्रॉम अबव बाय द सुपीरियर। तो एक सुपीरियर जब है देख रहा है अपने सबॉर्डिनेट को काम करते हुए तो उसे क्या कहेंगे हम? सुपरविजन। द पर्सन हु सुपरवाइजेस द वर्क कॉल्ड सुपरवाइजर। जो काम को सुपरवाइज कर रहा है, अपने सबॉर्डिनेट के काम को सुपरवाइज कर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? सुपरवाइजर। He may also be designated as foreman, overseer and superintendent. तो सुपरवाइजर को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, और क्या नाम हो सकता है उसको? हम फोरमैन भी कह सकते हैं, ओवरसियर भी कह सकते हैं और सुपरिटेंडेंट भी कह सकते हैं। नाउ सुपरवाइजर के फंक्शंस क्या हैं?
सुपरवाइजर क्या करता है कि आपका चेक करता है कि क्या क्या काम करना है, फिर उसके स्केड्यूलिंग करता है, टाइम करता है, कितने टाइम में क्या काम होना चाहिए, कितना काम होना चाहिए, फिर वो ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देता है, साथ साथ वो गाइड करता है, साथ साथ वो चेक करता है, रिपोर्ट करता है। सुपरवाइजर एक गाइड है आपका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में, जो कि मैनेजमेंट के आपको जो प्लान्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अचीव करने के किस तरह से अचीव करना है वो आपके एम्प्लॉयज़ को बताता है, और एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेस जो है आपकी जो और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तक लेकर जाता है, राइट। तो उसका क्या काम है? गाइड करना, मोटिवेट करना। तो द सुपरवाइजर प्रिपेयर्स द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर अ स्टेडी एंड इवन फ्लो ऑफ work. Scheduling involves laying down the time for different activities as well as the total time in which the work is to be completed. तो सुपरवाइजर क्या करता है? एक स्केड्यूल प्रिपेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, ताकि जो एक इवन फ्लो में, मतलब एक फ्लो से काम चलता रहे। वो ना ही सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज का टाइम जो है आपका डिसाइड करता है, रादर पूरा वर्क कितने में कंप्लीट होना चाहिए उसका भी टाइम वो डिसाइड करता है। देन इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, एक सुपरवाइजर जो है ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इशू करता है ताकि वर्क एग्जीक्यूट हो सके। द पर्पस ऑफ एन ऑर्डर इज टू इनिशिएट, मॉडिफाई और हॉल्ट एनी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इंस्ट्रक्शंस टेल वर्कर्स how the work is to be done. Supervisors often provides orientation and on the job training to employees workers also. Supervisor क्या कर रहा है? सिर्फ ऑर्डर इशू नहीं करता है, इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं करता है, बल्कि वो क्या है, जो उसका ऑर्डर का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि ताकि वो किसी एक्टिविटी को इनिशिएट कर सके, उसको मतलब स्टार्ट करा सके, मॉडिफाई यानी कि उसमें चेंज कर सके, या किसी एक्शन को हॉल्ट पे यानी कि रुकवा जा सके। इंस्ट्रक्शंस जो है दिए जाते हैं वर्कर्स को कि किस तरह से काम को करना है। सुपरवाइजर सिर्फ यही काम नहीं करता, बल्कि वो ओरिएंटेशन यानी कि नए जो वर्कर्स आते हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से जो है इंट्रोड्यूस कराता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग है, क्या प्रिंसिपल है, क्या जो कौन कौन से लेवल पे क्या काम हो रहा है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। व्हाट इज़ द वे ऑफ वर्किंग, राइट। एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का काम आपका जो करता है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को सुपरवाइजर करता है। Guiding subordinates, it is the primary function of supervisor to guide and advise his subordinates. He explains the plans and policies of management to workers. He also solves their problems related to technical aspect, working condition, materials, tools and their interpersonal relations. तो supervisor जो है advice तो कर ही रहा है subordinates को, और साथ ही साथ उनको प्लान्स और पॉलिसीज जो बनाई है टॉप मैनेजमेंट में उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि क्या प्लान और क्या पॉलिसी हैं, उनके हिसाब से काम कैसे होना चाहिए। वो उनसे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, वर्किंग कंडीशंस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मटेरियल से या टूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या उनके अपने आपस के जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उनके बारे में कोई प्रॉब्लम है उनको, तो उनके लिए भी उनको जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। देन मोटिवेटिंग वर्कर्स, सुपरवाइजर जो है इंस्पायर करता है सबऑर्डिनेट्स को टुवर्ड देयर बेटर वर्क परफॉर्मेंस। द सुपरवाइजर्स क्रिएट एंथुसियाज्म एंड टीम स्पिरिट अमंग देम टू प्रॉपर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो किस तरह से दे रहा है वो, कैसे इंथुसियास्ट कर रहा है उनको, कैसे उनमें टीम स्पिरिट जो क्रिएट करता है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के इंसेंटिव के थ्रू उन्हें मोटिवेट करता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और वो फुल इंथुसियाज्म से काम करें और साथ में ही वो टीम स्पिरिट में काम करें। Maintaining discipline, the supervisor enforces the rules and regulations among his subordinates. He ensures that workers follow the prescribed rules and work procedures while doing their jobs. तो rules और work procedures को उन्हें कैसे follow करना है वो उस पर जो impose कर रहा है या उनसे जो enforce करता है उनके ऊपर supervisor करता है अपने employees पर। Monitoring performance, supervisor checks on the work method in use and progress of work against the planned schedule. तो वर्क मेथड क्या यूज हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं फॉल्ट है, कहीं डिले है, तो उसको चेक करता है और साथ ही साथ उनके प्लान शेड्यूल के देख रहा है कि प्रोग्रेस कितनी है स्केड्यूल के हिसाब से।
He records actual performance at regular intervals to ensure quality and quantity of work. तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस को वो रिकॉर्ड इसलिए करता रहता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क दोनों ही बेस्ट हो. Handling grievances, the supervisor listen to the grievances and complaints of workers and take all possible steps to remove them. He communicates the grievances and suggestions of worker to higher authorities. He also recommends a transfer, promotion and dismissal of workers. तो ट्रांसफर्स, प्रमोशंस और डिसमिसल वर्कर्स का वही रेफर करता है कि किसकी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, किसको प्रमोशन की ज़रूरत है और किसको वर्कर को निकाल दिया जाना चाहिए on the basis of their performance in the work. Now, ensuring safety, the supervisor ensures that workers use safety devices. He goes on regular inspection to ensure that all machines and equipments are in a proper condition. तो रेगुलर चेकअप होता रहता है मशीन्स का ताकि जो इक्विपमेंट्स में जो उनकी कंडीशंस जो इंटैक्ट हो उनमें कोई फ्लॉज ना हो, फॉल्ट ना हो. He makes arrangements to detect and remove all types of hazards and minimize industrial accidents ताकि hazards कम हो और industrial जो accidents ना हो या minimum हो. Reporting feedback, the supervisor prepares and submits reports to the higher authorities. These reports relates to progress of work, achievement of targets, performance of the work groups, etc. Serving as a linking pin between management and the workers. On the one hand, he communicates the policies and decisions of management to workers, and on the other hand, he conveys the suggestions, grievances, and complaints of the workers to management. So, this was the work of a supervisor. Now, second element of directing is motivation. Motive is the urge to do or not to do something. राइट. द वर्ड मोटिव जो है उसका मतलब है कि कुछ काम करें या नहीं करें, आपके अंदर अर्ज है यानी कि एक्साइटमेंट है किसी काम को करने की या नहीं है. इट इज दैट फोर्स विद इन एन इंडिविजुअल विच कंपेल्स हिम टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. तो ये क्या है, कंपेल कर रहा है किसी इंसान को किसी काम को करने या ना करने का एक तरीके से. सो मोटिव्स जो है स्पर्स एंड गाइड पीपल टू एक्शन. मोटिव क्या है, मोटिव जो है स्पर करता है या गाइड करता है इंसान को कि वो एक्शन ले. One of the function of management is to create the desire among the employees to perform their jobs to the best of their ability. तो मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट करते हैं ताकि वो जॉब को अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज से परफॉर्म कर सकें. इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू वर्क हार्ड फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स कॉन्स्टिट्यूट्स द मोटिवेशन function of management. तो motivation function क्या है? Inducing people to work hard to achieve common goal is called motivation. Motivation is a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. यहाँ हम कह सकते हैं motivation process है जिससे कि people के stimulate किया जाता है people के actions को ताकि desired goals या desired objectives को achieve किया जा सके. Now, मोटिवेशन थ्योरी आपकी मास्लो ने क्रिएट की. राइट. मास्लो ने डेवलप किया था क्लासिफिकेशन ह्यूमन नीड्स का जिसे कहते हैं हम हायरार्की ऑफ नीड्स. ये हायरार्की ऑफ नीड्स उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने कहा कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए कुछ हायरार्की है जिसको हम स्टेज बाय स्टेज चलती है, वन से अदर लेवल पे जाती है और हर लेवल पर उसको मोटिवेशन मिलता है. पर एक लेवल का अगर उसको जब अचीवमेंट हो गया तो उसका वो मोटिवेशन नहीं रहता, वो फिर हायर लेवल पे उससे हायर लेवल पे जा रहा है और वो सेकंड लेवल उसका मोटिवेशन हो जाता है. और जैसे जैसे वो प्रीवियस मोटिवेशन नीड्स उसकी फिनिश हो जाती हैं तो वो मोटिवेशन नहीं रहता, उसे हायर लेवल पर मोटिवेशन जो है मिलना चाहिए. सो मास्लो हैज डेवलप्ड ए क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स व्हिच इज नोन एज हायरार्की ऑफ नीड्स. According to him, human needs can be classified into 5 categories and can be arranged in order of their importance or priority. The arrangement of human needs according to their priority called hierarchy of needs. Different needs of human being are कौन सी needs हैं? Physiological needs, safety needs, social needs, esteem और ego needs and self-actualization needs. तो आपकी जो है सबसे पहली नीड थी जो इंसान की सबसे ज़रूरी नीड है और सबसे बेसिक और सबसे पहली नीड है वो साइकोलॉजिकल नीड है. जब तक फिजियोलॉजिकल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड अगर जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो दूसरी नीड्स को नहीं आगे जो है उसको मोटिवेट नहीं करेंगी. सो द फर्स्ट नीड जो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है वो क्या है, उसकी नीड फॉर एयर, वाटर, फूड, स्लीप एटसेट्रा.
दीज आर जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जो कि बाकी दूसरी नीड्स से पहले सेटिस्फाइड होना जरूरी है। सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स इज ऑल्सो नोन एज सर्वाइवल नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनको हम सर्वाइवल नीड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट स्टेप नीड्स भी बोल रहे हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फाइनाइट एंड सच नीड्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड ओनली इन अ लिमिटेड वे। तो एक लिमिटेड वे में ही सेटिस्फैक्शन चाहिए। मैन struggles for food alone as long as there is not enough food to satisfy his hunger। तो मैन तब तक स्ट्रगल करता है जब तक उसकी हंगर सेटिस्फाई नहीं होती। Once in hunger is satisfied, he is not happy with bread alone। अब जब वो उसकी हंगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो सिर्फ ब्रेड से खुश नहीं है, उसे दूसरी चीज़ें चाहिए। बट ह्यूमन फिजियोलॉजिकल नीड्स हैव टू बी रिपीटेडली सेटिस्फाइड। आपकी वन टाइम नीड नहीं है ये बार बार सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरत होती है। आपकी फूड नीड है, वाटर नीड है, स्लीप है, आपको बार बार चाहिए, ये रोज चाहिए आपको। फूड इज रिक्वायर्ड थ्राइस अ डे, 4 times a day, air every time, every minute, every second, right? Water also number of times in a day, और sleep, right? At night every day you require। तो ये आपको बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट आपकी जो लेवल नीड सेकंड नीड्स आती हैं हेरार्की पर, इसके ऊपर फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आपकी आती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। दीज नीड्स इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी against danger at extreme weather like fire, accidents, etc. Extreme weather, fire, accident, etc. So किसके अगेंस्ट चाहिए उसको? एक्सट्रीम वेदर के अगेंस्ट, फायर के अगेंस्ट, एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट, and economical security against old age, sickness, etc. Therefore, person wants shelter, clothing, life insurance, pension, etc. So these provide freedom from fear or threat. An employer can satisfy safety needs of his employees by offering job security, pension, group insurance, etc. तो आपकी नीड्स को, जो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है, जो उसको फिजिकल सेफ्टी और आपकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी लाइक ओल्ड एज, सिकनेस वगैरह से चाहिए, वो आपकी कैसे कर सकता है कि एम्प्लॉयर सेटिस्फाई? बाय जॉब सिक्योरिटी देकर, इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज देकर, पेंशन देकर। देन सोशल और एफिलिएशन नीड्स। मैन एक सोशल है नेचर में, उसको सोसाइटी चाहिए, उसे लोग चाहिए, राइट? उसे लव अफेक्शन चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, उसे फ्रेंड्स चाहिए। सो हर इंडिविजुअल जो है वो अपना फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स बनाता ही है। सो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटिस्फाई कर सकती है? आपके फॉर्मल जो आपके रिलेशन है उसके साथ साथ इनफॉर्मल रिलेशंस को भी एनकरेज करके। मैन इज सोशल इन नेचर, ही नीड्स लव, अफेक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एसोसिएशन, फ्रेंडशिप विद अदर्स। Therefore, an individual creates a family, relatives, and friends. Organizations can satisfy these needs by encouraging team building and providing opportunities for friendship on the job. Now, next fourth is your ego esteem needs। क्या है ego esteem needs? हैं कि काम करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, और जॉब के लिए आपको देन आपको चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस हो, आपके जो आपको रिकॉग्निशन मिले, राइट? आपका स्टेटस हो, प्रेस्टीज हो, आपके पास पावर हो। तो ये आपके जो है ईगो और एस्टीम नीड्स होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या कैसे प्रोवाइड कर सकता है? ताकि आपको अप्रिसिएशन देकर, ठीक है, चैलेंजिंग जॉब्स देकर, जॉब टाइटल्स अच्छे अच्छे देकर, राइट, और प्रमोशंस वगैरह के चांसेस देकर। These include self-esteem and esteem of others. Self-esteem means self-confidence, self-respect, etc. Esteem of other means power, prestige, status, independence, achievement, recognition and respect from others, right? तो आपके क्या है इसमें? esteem of others। पहले तो है आपकी दो तरह की एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम है और एस्टीम ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम में क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और एस्टीम ऑफ अदर्स मीन पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, दूसरों से मिल रहा है आपको जो प्रेस्टीज, स्टेटस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट और रिकॉग्निशन, दैट इज कॉल्ड एस्टीम ऑफ अदर्स। ऑर्गेनाइजेशन ये नीड्स कैसे सेटिस्फाई कर सकती है? चैलेंजिंग जॉब्स देकर, परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करके, जॉब टाइटल्स देके अच्छे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आपकी सबसे हायर नीड हो गई। ये क्या है कि आपकी जो अटमोस्ट ग्रोथ हो सके। हर इंसान वो बनना चाहता है जो बनने की उसकी कैपेबिलिटी है, यानी कि उसका सेल्फ फुलफिलमेंट होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स क्या? उसकी जो
आपकी बढ़ती जाए। तो ये जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं किसी भी इंसान की, वो इनफाइनाइट है। आपकी जो कुछ नीड्स है जो फाइनाइट हैं, एक लेवल तक होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बट कुछ नीड्स आपकी इनफाइनाइट होती हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है, और ये आपकी नीड टू ग्रो है, दैट इज योर इनफाइनाइट नीड। सो दिस implies द डिजायर to become what one is capable of becoming. Self-actualization needs refers to the need of to grow and self-fulfillment. So because there is no limit to grow, so excuse me, there is no limit to grow, तो कितना भी ग्रो कर सकता है, तो ये नीड्स आपकी फिनिश नहीं होती हैं. These needs are physiological and infinite because psychological sorry these needs are psychological and infinite because there is no limit to progress. A manager may provide opportunities for continuous learning, encourage creativity, grant independence, and allow risk taking to help employees satisfy their self actualization need. तो हम देख रहे हैं चार्ट. फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है आपकी? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. सेफ्टी है आपकी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिजिकल सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेफ्टी. सोशल में है फ्रेंडशिप, ग्रुप मेंबरशिप, सोशल कनेक्शंस. एस्टीम है अप्रूवल, रिकॉग्निशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड सेल्फ फुलफिलमेंट में हो गया आपका अकम्प्लिशमेंट, प्राइड, मेंटल ग्रोथ. नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द assumptions ऑफ मास्लो थ्योरी. मास्लो थ्योरी की assumptions क्या थी? मास्लो थ्योरी की assumptions है ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड्स. सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर. तो जो बेस्ड है किस पे? नीड्स है, और इन नीड्स से क्या होता है? उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है. ह्यूमन नीड्स जो एक हिरार्की फॉर्म करती हैं, जो बेसिक से हायर लेवल तक जाती हैं, यानी कि आपकी फिजियोलॉजिकल से आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर सोशल नीड्स, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स, ईगो नीड्स, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो हर लेवल को जब क्रॉस करते जाते हैं तो वो लेवल आपका मोटिवेटर नहीं रहता, सीजेस टू बी मोटिवेटर, और उससे ऊपर का जो आपका लेवल है वो मोटिवेटर हो जाता है. नेक्स्ट हायर लेवल बिकम्स द मोटिवेटर. Human needs form a hierarchy starting from basic needs to higher level needs. Satisfied needs ceases to be a motivator. तो खत्म हो जाती है, वो मोटिवेटर नहीं रहती. So when the lower needs is satisfied, a person moves to the next higher level need, and that need becomes their motivator. तो क्रिटिसिज्म किस ग्राउंड्स पे हुआ? क्योंकि ह्यूमन नीड्स को एक कैटेगराइज हम एक डिस्टिंक्ट एंड वाटरटाइट कैटेगरीज में नहीं कर सकते. मतलब आपने क्या किया, उनको टाइट कर दिया कि ये यही है, पर ह्यूमन नीड्स एक साथ ही ह्यूमन बीइंग्स एक के बाद एक नहीं, एक के साथ ही बाकी नीड्स को भी वो अपने सेटिस्फाइड करना चाहेगा. लाइक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ ही वो चाहता है उसकी सोशल नीड्स भी फुलफिल हो, उसकी ईगो नीड्स भी, राइट, सिक्योरिटी नीड्स, एंड साथ ही साथ उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी पूरी हो जाए. Human needs cannot be categorized into distinct and watertight categories. Need may not follow hierarchy. Needs जो hierarchy follow नहीं करते हैं, right? As you people might have seen many of the movies, if you have seen 12th Fail, the person who was from the poverty line, below poverty line, was living in a village, has become an IAS officer, IPS officer, right? To the extreme higher level that we say ki he has achieved the self actualization need, right? So this is what we can say the Maslow theory cannot be categorized into watertight categories. Now next of the element of your directing is your leadership. Leadership, it is a process by which a person influences other behaviors and performances to accomplish specified objective. A leader is an individual who influences and guides the efforts and work of a group of person. Leader कौन है? जो influence करता है, जो guide कर रहा है किसी ग्रुप के लोगों को. जो पर्सन जिसको फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं. और जो पर्सन फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फॉलोअर्स कहा जाता है. लीडर जो इन्फ्लुएंस करता है फॉलोअर्स के बिहेवियर को, और वो फॉलोअर्स जो उसको विलिंगली जो है फॉलो करते हैं, और जो आपके ग्रुप का
जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अकम्प्लिश करते हैं। तो आपका इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग विलिंग एंड एंथ्यूसिस्टिक ऑपरेशन ऑफ अदर्स। विलिंगली और कोऑपरेटिव और जो एंथ्यूसिस्टिक ऑपरेशन मिलता है अपने आप ही अदर दूसरों से। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर्स। तो आपका जो ये प्रोसेस है जिसमें लीडर और फॉलोअर्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये कोई हायरार्की फॉर्म नहीं करता। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक लोअर लेवल एम्प्लॉई एक हायर लेवल जो है टॉप मैनेजमेंट के पर्सन के साथ भी ग्रुप में हो सकता है। The interaction between the leader and his follower is based on interpersonal relation. He supports and guides his followers to accomplish individual and group goals. तो इंडिविजुअल गोल्स और ग्रुप गोल दोनों को अकम्प्लिश करने के लिए ही लीडर जो है सपोर्ट करता है। तो हायर लेवल और लोअर लेवल के सब लोग एक ग्रुप में हैं आपका, उसमें कोई लीडर जो है जरूरी नहीं है टॉप मैनेजमेंट ही हो, वो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट से भी कोई पर्सन हो सकता है, राइट? क्योंकि उसे विलफुली और उसकी किसी पर्सनल ट्रेड के कारण बाकी सब लोग उसको विलफुली अपना लीडर मानते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक साउंड फिजिक होना चाहिए, राइट? उसका गुड हेल्थ, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, ट्रेमेंडियस स्टेमिना होना चाहिए, विगर होना चाहिए हार्ड वर्क के लिए, राइट? हैव अ गुड फिजिकल पर्सनालिटी, वाइटैलिटी एंड एंड्योरेंस होना चाहिए उसका। इंटेलिजेंट लीडर शुड बी इंटेलिजेंट एनफ टू एग्जामिन प्रॉब्लम्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, कि क्या हो सकती है, बिल्कुल ठीक पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स को वो एग्जामिन कर सके, राइट? ही शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ हिज एक्शंस। ही रिक्वायर्स अ लॉजिकल ब्रांड ऑफ माइंड एंड अ बेंड ऑफ माइंड, नॉट ब्रांड, इट इज बेंड ऑफ माइंड एंड अ मैच्योर आउटलुक। लीडर का जो है एबिलिटी जो है क्या हो सकते हैं उसके एक्शंस के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं उसको एक्सेस करना आना चाहिए, और उसका लॉजिकल बैंड होना चाहिए माइंड का, और एक आउटलुक जो है मैच्योर होना चाहिए ताकि वो सबको समझ सके, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझ सके। इनिशिएटिव लीडर जो इनिशिएटिव लेने वाला और करेज वाला होना चाहिए, और दूसरों को एनकरेज करने वाला भी होना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटीज को के लिए वेट नहीं करने वाला होना चाहिए, रादर ही type of person who can create opportunities. Rather, he should grab the opportunities and use it for the benefit of the organization. Self confidence and willpower. एक लीडर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है वो क्या है, उसका एक क्वालिटी है, वो है उसका कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटीज में। ही शुड हैव विल पावर टू मीट द नीड्स ऑफ एवरी सिचुएशन। देन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके कि क्या गोल्स हैं, राइट? और कैसे उनको जो है फॉलो करना है, अचीव करना, और कैसे लोगों को परसुएड करना है उसको आना चाहिए, और वो अपने कम्युनिकेशन स्किल से ही लोगों को परसुएड या कन्विंस कर सकता है। द स्किल टू लिसन पेशेंटली एंड विल एम्पैथी इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट फॉलोअर्स। सिर्फ उसका कम्युनिकेशन स्किल में उसे सिर्फ बोलना ही नहीं आना चाहिए, रादर उसको सुनना भी आना चाहिए और उसमें एम्पैथी भी होनी चाहिए ताकि दूसरों को वो समझ सके और उनको मोटिवेट कर सके। Decisiveness. A leader should be decisive and firm in his opinion. He should have objective outlook and free from bias and prejudice. He need to be open-minded and a person with sound judgment. तो क्या होना चाहिए? लीडर को एक साउंड जजमेंट वाला होना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव आउटलुक होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, राइट? और जो उसका एक ओपिनियन जो होता है होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी. अ लीडर शुड हैव अ कूल टेम्परामेंट and emotional balance. He should not be unduly moved by emotions and should not lose his temper in the face of heavy odds. लीडर जो है स्टेबल इमोशंस का होना चाहिए, टेम्परामेंट उसका जो है जो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, इमोशन से वो मूव्ड ऑफ नहीं होना चाहिए, और अपना टेम्पर जो है वो लूज ना करे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. A leader should be trustworthy so that subordinates can depend on him. He should be willing to assume responsibility for results. लीडर क्या होना चाहिए? ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, राइट? ताकि सबॉर्डिनेट्स उस पर डिपेंड कर सके और वो विलिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ले सके कि रिजल्ट के लिए वो अपनी जिम्मेदारी को खुद लेने वाला होना चाहिए। Now the last one of this directing element is communication, right?
कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी कम्युनिकेशन. Communication is the exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by one or more, by two or more persons. Right? Communication क्या है? Exchange of facts, ideas, emotions, opinions between two or more persons. This is communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the minds of others. It is a bridge of meaning. It mean क्या है? आपको एक दूसरे को समझाना. That is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. तो एक systematic process है जिसमें continuously चल रहा है आपका telling, listening and understanding. तो telling, listening दोनों चाहिए और साथ में understanding भी है. अगर आपका telling, listening है पर understanding नहीं है तो communication complete नहीं होगा. So I'm ending up the chapter up to this part. Students, now in next part we will continue with the communication, right? Their barriers and how to remove the barriers of communication. Till then, bye bye and like, share and subscribe the channel. Thank you.